So we're going to continue where we left yesterday. So what we are going to see today's class is basically continuous spectrum and closure. So what we mean by that? Continuous spectrum and closure. Closure, you know, algebraically. Closure किसको कहते हैं, है ना? हम कहते हैं this algebra is closed. कोई चीज बाहर से इसमें it's complete in some sense. For example, so once this room is there, है ना? एक brick नहीं है. आप उसको करेंगे तो now it's closed. System is closed. अब yesterday we were interested in कोई भी आइगन स्टेट का आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है? So we said that two or more eigenstates may correspond to some unique eigenvalue, ठीक है? So in that sense, we also said that even if two or more states may correspond, if psi and psi are same, तो कोई बात नहीं. But if psi1, they are psi1 and psi2 are different states, still what are the eigenstates which correspond to the given eigenvalues, ठीक है? तो हमारे पास वहां दो कंडीशंस आएगी. If psi and psi are orthogonal, ठीक है, the orthogonal components will not contribute. तो हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मेलिटी आती है, ठीक है? So the point is how we can enumerate the eigenstates which will correspond to given eigenvalues. उन्हीं का सम जो हमारे पास है at the end, sigma I, ci, psi I goes to 1 to n, है ना, infinite जो भी है, will correspond to total summation of eigenstates का evolution or ensemble of those eigenstates. Total will give us the probability distribution of that wave function, ठीक है? Psi maybe alpha 1, psi 1, alpha 2, psi 2, alpha, ठीक है? And this was the general procedure. अब मसला what comes out to be basically हमारे पास ये कि क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो वैल्यूज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स वी नॉर्मली आर इंटरेस्टेड इन द डिस्क्रीट, हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होती है इट हैपेंस इन डिस्क्रीट वे, है ना? एक हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक हो गया क्वांटम डिस्क्रीट. अब क्योंकि जो हमारे पास हमने कहा था ना, अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल स्टेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल psi I, psi j, so if they are orthogonal it will be 0. अब यह है कि how many orthogonal states we can construct a infinite, there are infinite orthogonal states which will correspond to the given eigenvalue, and those orthogonal states can be the way we have a linear equation, है ना, alpha 1 जैसे a1 plus alpha 2 a2, ये हो गई. अगर alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to 0, we say it's a linearly independent equation. If alpha 1 is not equal to alpha 2, then we say it's a linearly dependent equation. अब जो हमारे पास psi 1 alpha 1, psi 2 alpha 1 है ना, so if it's a orthogonal states, so we will have infinite number of states which are orthogonal to it, जो हमारे पास. So हमारे पास since we are जो रियल सॉल्यूशंस हमारे पास आएगा, एक हमारे पास आएगा कंटिन्यूस स्टेट्स which will have the solutions of orthogonal states which may be infinite or which may be very large, which will correspond to that eigenstate. एक तो वो हो गया, और हमारे पास एक ऑर्थोनॉर्मल स्टेट अलग होगा. The sum of these two states will give us a general state of that जिसका समेशन हमको will give the total probability. तो उसी को हम कहते हैं. अब मसला ये आ रहा है कि टोटल स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड क्लोजर. तो हाउ कैन एन्यूमरेट दीज स्टेट्स इन द फर्स्ट प्लेस, इसका सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है? दिस इज आवर, पहले हम ये करेंगे. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड which I said which will make it
जिसका हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन। व्हेन इज ए फंक्शन ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हम कहेंगे differentiation is process of finding the derivative of a function. Integration is a process of finding if the derivative is given, you get the function back, है ना? x square is equal to integral of 2x is equal to, but if you just इसका एक ग्राफ होगा ना कंटिन्यूसली ऐसे, if you y एक साइड से x करोगे एक साइड से, है ना? So it's a continuous curve. Whenever you talk of differentiability or integrability, it's something continuously happening in space. ठीक है? तो उसी में हमने कल कहा था, जो क्योंकि हमारी जो वेव फंक्शन है ना, इट्स साई स्क्वायर, है ना? तो वी आर इंटरेस्टेड इन के साई स्क्वायर एम्पलीट्यूड्स, तो हम यूज करते हैं वर्ड स्क्वायर इंटीग्रेबल। क्या कहते हैं? स्क्वायर इंटीग्रेबल मीन्स द फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड। स्क्वायर ऑफ द फंक्शन है वेव फंक्शन, बट इट कैन बी इंटीग्रेटेड। सडनली कोई कट नहीं आएगा, ठीक है? अगर डिफरेंशिएशन में है ना, ये सडनली यू विल गेट इट, वी से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कट आता है नीचे, वी से इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। अ फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएबल इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना? अब ये है कि वी आर मैपिंग दीज आइगन स्टेट्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगे, है ना? और दोज आइगन स्टेट्स में भी ऑर्थोनॉर्मल और दे में भी ऑर्थोगोनल स्टेट्स, ठीक है? which are embedded in Ci psi I, where I goes to 1 to infinity, ठीक है? अब ये है कि they should be square integrable, they should be, उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में जब आप रियल में पढ़ोगे लिबी स्पेस भी कहते हैं, L2 इंटीग्रेबल स्पेस। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड, एंड उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड बी हैव अ क्लोजर। क्लोजर मीन यहां से यहां तक, ठीक है? अगर इन्फिनिट भी है माइनस इन्फिनिट, सो कोई बाउंड होना चाहिए यहां से यहाँ, so you can close it. It starts somewhere and it should end somewhere. But because we are interested in psi square, this is a probability amplitude of this wave function. It should be square integrable. It should be and it should have a continuous spectrum. ठीक है? अब हमारे पास जो continuous spectrum है, उसमें हमारे पास discrete eigen values भी आएंगे और कंटिन्यूस आइगन वैल्यूज भी आएंगे, उसमें हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स भी आएंगे, उसमें हमारे पास ऑर्थोगोनल स्टेट्स भी आएंगे। दो ऑर्थोगोनल स्टेट्स विल दे विल बी, उसका वैल्यू समेशन 0 आएगा, ठीक है? यहां तक ठीक है? कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ठीक है, दैट्स फाइन। हाँ, अब ये कह रहा है, इफ आई यूज द वर्ड्स ऑफ द बुक, इफ quadratic integrability is too narrow a restriction to impose on eigenstates. So what should be the एक तो ये quadratic integrability एक है कि एक impose restrict. So अब general way of कैसे हम this states, quantum states को कैसे हम construct कर सकते हैं, all states having all value eigen values और all eigen states को हम कैसे reconstruct करेंगे in a given space. तो हमारे पास जो जनरल कंडीशन है ना, a given eigen function will correspond to a given eigen function will correspond to given eigen state, where this is an operator operating of this thing and it will give this eigen state. अब ये कह रहा है कि we must, if I use the words of book, we must tailor mathematics to the requirements of physics. इसका मतलब क्या है ना? So mathematics में we define function in some general sense, because we can in principle between two points there are infinite points, between two numbers there are infinite number. तो but हम real life में कोई physical quantity है, we are seeing कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह उसकी ट्रांजिशन हो रही है, तो यू विल हैव अ डेफिनेट फाइनाइट एनर्जी, 13.6 by n स्क्वायर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाता है. सो वी हैव टू कैलकुलेट exact values. So we are not, so in mathematics you can have these square integrable sphere, they can have very large. So we have to just उसको mathematics को to the requirements of the physics करना है, physics of the physical world को हम we are going to tailor it in that sense. So if I will say it that
These functions which form functions which are part of complete set only belong to एक तो belong करेंगे continuum of real eigenvalues. So even though हमारी जो ये psi है it's made up of complex, it's a complex quantity, ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं रियल है. दैट्स पे हमने वो हर्मिटियन प्रॉपर्टी की वहां इंपोज की थी, ठीक है, वो कम्यूटेशन रिलेशन दैट कम्स, सो उससे वहां निकलता है. सो इट फॉर्म्स कंटिन्यूम ऑफ रियल आइगन वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन आइगन वैल्यूज कंटिन्यूसली, है ना, कंटिन्यूसली. तो कंटिन्यूसली मीन्स वी कैन जस्टिफाई दिस इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन, ठीक है. अगर हाँ ये है एक थिंग. तो वी कैन हैव psi कैन बी रेड एज, तो इफ वी हैव बोथ, अगर हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस है, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस लेंगे, ऑर्थोगोनल सॉल्यूशंस भी लेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सॉल्यूशंस भी लेंगे. तो ऑर्थोगोनल सॉल्यूशंस विल कंट्रीब्यूट टू जीरो. अगर हम इसको विल राइट इट इन दिस वे, विल राइट इट लाइक दिस, सी आई psi i प्लस, ये तो एक हो गए सॉल्यूशंस. दूसरे हमारे पास जो ये कंटिन्यूस सॉल्यूशंस हैं डी ए प्राइम. तो इसका जो फंक्शनल फॉर्म, तो एक तो ये है, एक तो कंटिन्यूस सॉल्यूशंस हैं, एक ऑर्थोगोनल सॉल्यूशंस है, ठीक है. यू कैन हैव all sorts of solutions, all sides of eigenstates which will correspond to given eigenvalues, ठीक है. तो that's it. अगर हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस कंडीशन है, so there can be many large solutions, ठीक है, क्योंकि अल्फा 1 is equal to अल्फा 2 is equal to 0. so जो ऑर्थोगोनल स्टेट्स 0 होंगे, so large eigenstates may correspond to given eigenvalue, ठीक है. सो वी हैव बोथ, ये वाला भी, ये वाला कंटिन्यूस सॉल्यूशंस भी और दिस सॉल्यूशंस आल्सो भी. सो इसका जो फंक्शनल वे, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं हम कैसे, अगर इसका फंक्शनल डिपेंडेंस लेंगे. फंक्शनल डिपेंडेंस मींस एक साइड से आइगन फंक्शन होगा, दूसरे साइड से आइगन स्टेट्स होगा. तो कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू. साई स्टार ऐसे रखते हैं, है ना, ये ऐसे रखते हैं, एंड psi, एंड इफ इट्स इन पोजीशन स्पेस देन इट्स d3r, इट्स इन मोमेंटम स्पेस देन इट्स d3p, ठीक है. सो ये हमारी जो स्टेट है. अब इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है सी आई स्क्वायर, यहां पर कल जो हमने किया था, इफ इट्स एफ ऑफ ए प्राइम प्लस इंटीग्रल ऑफ सी आई एफ ऑफ ए प्राइम स्क्वायर. हाँ, बिकॉज ये वाला जो हमारा है इट्स इंटीग्रेबल, इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन, एंड इट इज द अदर पार्ट, यू कैन टेक इट डिस्क्रीट और एनी अदर ऑर्थोगोनल फंक्शन. अब हमारे पास ये है जो कंटिन्यूस फंक्शन, या हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर. क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी मेजर. प्रोबेबिलिटी मेजर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हम लिमिट लेते हैं ना x टू dx, लीजिए ना x ना ऐसे, जब x प्लस dx टू x dx लेते हैं ना बिटवीन. सो इन द सेम वे जो प्रोबेबिलिटी मेजर होगा फॉर दिस कंटिन्यूस फंक्शन, इट मे बी बिटवीन a प्राइम and a prime plus dA prime. So if we substitute this equation here in terms of जो हमारे पास ऑर्थोगोनल स्टेट्स होंगे, उनका वैल्यू मोर और लेस 0 आएगा, ठीक है. सो द फंक्शन जो हमारा पास आएगा psi star psi a, it will come out to be, so if we want to have psi a prime d3r, it will be delta a prime minus a double prime. So it comes out to be a delta function. How it comes out to be delta function? For example,
if psi a is psi a, मतलब if it's then cos 0 is, जैसे आप सिंपल करोगे ना डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, if psi is equal to psi of psi cos 0 is 1. If psi is 90, cos 90 is, so we can have this delta function. If a is equal to a prime, a double prime, it will be 0 or it will correspond to 1. ठीक है, so इसी को हम क्रोनिकल डेल्टा में भी डेल्टा आई जी से लिखते हैं ऐसे. ठीक है, सो वी कैन, जो ये टोटल इन्यूमरेशन ऑफ स्टेट्स है, इट विल टेक दिस फॉर्म, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक दिस फॉर्म. अब क्योंकि हम अगर हम अब दोनों स्टेट्स को करेंगे, ये तो हमने सिर्फ किया फॉर गिवन आइगन स्टेट्स एक के लिए किया, मगर अगर हमारे पास ये तो हमारे लिए हमने एक के लिए किया, अगर इफ वी आल्सो टेक दोज ऑर्थोगोनल स्टेट्स विच में बी वेरी लार्ज इन नंबर विच विल कॉरस्पॉन्ड टू गिवन आइगन स्टेट, तो हमारे पास ये जो आएगा डेल्टा आएगा, डेल्टा यू हैव टू फर्दर इसको आप we can further write it as psi star a psi of a minus a psi of a star psi of a d3r में भी एक कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए भी, एक डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए भी, फॉर बोथ उसमें भी एक, इधर इट में भी 0 और इट में भी 1, और इधर इट में भी 0 और इट में भी 1, डिपेंड्स वेदर psi and psi are same or psi and psi are orthogonal. ठीक है, that's it. So if both the terms are included, this as well as this, we will have delta function. इसका फॉर्म हमारे पास ऐसे आएगा. तो वी आर गोइंग टू यूज एक प्रॉपर्टी है, आप देखना डिराक डेल्टा फंक्शन की. चलो वी लीव इट. सो बिफोर सो फर्दर वी कैन राइट इट फर्दर अगेन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इन क्वांटम मैकेनिक्स और जनरली ऑल्सो, एक तो हो गई ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, दूसरी क्या है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन. ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन में इट विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग, ऑर्थोगोनैलिटी कंपोनेंट कंडीशन में इट विल बी 0. सो इफ वी आर सो वी अगेन कम बैक टू आवर हर्मिटियन प्रॉपर्टी. ठीक है, हर्मिटियन प्रॉपर्टी क्या है, शाबाश. हर्मिटियन प्रॉपर्टी में ये है दैट it will commute, है ना, two Hermitian operators operating on a given function. So in that sense we can write it this way. ठीक है, ऐसे psi a dtr is equal to a psi a prime star, है ना. So you have changed the order, ऐसे इसको ऑर्डर को चेंज किया है. So it will not, अगर इसको माइनस करेंगे it will be 0. Or you can see it. So in Hermitian conjugate, this, whether this is equal to, इसका आप conjugate करो, it should come out to be this. ठीक है, so this is it. So these are the physically admissible solutions. So अब ये क्योंकि हमारे पास जो है ना क्वांटम, we have जो हमारे पास psi, कल हमने कहा था psi is equal to ci, जो हमारे पास ये था psi1 c2 psi2, ये c1 है ना, ये एक्सपेक्टेड कोएफिशिएंट्स हमको कैलकुलेट करने होते हैं, बिकॉज उन्हीं का फिर एट द एंड c1 c2 psi2 एट द एंड इट विल कम आउट टू बी 1. दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेल. अब c1 c2 दीज जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स हैं, तो दे आर बेसिकली व्हाट, सी ए प्राइम जो हमारे पास है, इट विल कम आउट, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स. एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, साई स्टार साई dcr. अब ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो साई है, साई कैन हैव वैल्यू, फॉर एग्जांपल
अब हमारे पास एक तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, एक हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, बिकॉज वी हैव टेकन होल, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी हमने लिया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी लिया। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में भी ऑर्थोनॉर्मेलिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आ सकती है, उसमें भी ऑर्थोनॉर्मेलिटी। अगर एक ही चीज लिया तो हमारे पास सिंपल आएगा ये। अगर दोनों लिया, we taking both of them, we'll take both of orthonormality and orthogonality conditions in both discrete as well as continuous eigenstates, which will correspond to given eigenfunctions, eigenstates will correspond to given eigenvalues. But at the end, इन सब का हमको समेशन लेना है। Summation is psi is equal to C1, psi1, C2, psi1, C3, psi3 ऐसे। Where C1 जो expansion coefficient है वो individual probability of given state है। तो psi1 जो C1 है, for example this if I write it psi will be equivalent to Ci psi, ये जनरल C है। अब C है ना, C is basically the probability of this। आप ऐसे समझो these C1, C2, C3 जिस तरह आप वेक्टर्स में कंपोनेंट करते हैं ना, A is equal to A cos theta plus B sin theta, या A is equal to A1 cos theta, A2 sin cos theta 2, A3 cos theta 2, तो हमारे टोटल स्टेट निकालना है। It will be C1, psi1, C2, psi1, C2, C3, psi3. But C1, C2, C3 है ना, they are expansion coefficients. But they are also components of those states, which depends upon वो उनका कौन सा eigen value जो भी आएगा, that's embedded in them. ठीक है? That's why its Ci is this. For C1, इसी तरह C2, इसी तरह C3 in the same way. Or this is for continuous spectrum. Now for in the same way we will take for a discrete spectrum also, because हमने लिया था, because continuous spectrum and closure will have both discrete states as well as continuous states to begin with. And CA is psi star sin d3r। अब हमारे पास एक चीज आएगा कि अगर हमारे पास इफ इट्स बिटवीन, जैसे ये है ना, ये क्लोजर, इट्स बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट्स, जहां से हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, टोटल स्टेट्स का इंटीग्रेशन निकालते, कितने स्टेट्स आए, वर इनएमरेटिंग, बट इट्स सम फाइनाइट वैल्यू। अगर हम वो फाइनाइट को कम कम करते जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं ना, फेज स्पेस सेल, ऐसे 1, 2, 3, 4, so if it's infinite, if the distance between this closure property, so you cannot जो इसमें discrete and ये है ना continuous thing, you cannot find it, because अगर ये कमरा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, you cannot identify आप स्टूडेंट्स को कहाँ है, आपको एक कंटिन्यूसी लगेगी। जितना जितना आप कमरे को छोटा करेंगे, you can identify यहाँ एक स्टूडेंट बैठा है, यहाँ एक स्टूडेंट बैठा है। So if the phase space cell is made shrunk, तो हमको पता चलेगा यहाँ, we can identify discrete states का वैल्यू कैसे है। और even sometimes अगर discrete state का वैल्यू उतना होगा which is comparable to the length of the, जो हमारा ये है, ठीक है, बड़ा या कम भी हो सकता है, वो रेशियो आ सकता है, that describes our quantum states, ठीक है। सो इफ इट इज दैट वे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स psi I, so I'll take 2-3 minutes, then I'll stop. Per unit आइगन वैल्यू इंटरवल जो हमारे पास होगा, rho A point will be equal to delta n by so it's a spacing between discrete eigenvalues decreases as the confining volume grows. This is it. अब ये कह रहा है कि the consistency between the expansion formula of 37 and 38, if he has used इसका नंबर इसने रखा है 37
and 38 for discrete and continuous eigen values का ये रखा है. So we can write it in terms of it's achieved by relations. psi a का हम ऐसे लिखेंगे prime and CA is, तो इसको मैं आपको एज एन एक्सरसाइज रखूंगा, ठीक है. यू थिंक ओवर इट एट घर पर. तो ये साई ए इसने ऐसे लिखा है, इसने सी ए पहले साई ए को लिखा है, फिर इसमें जो साई है इट्स बेसिकली दीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स. तो रूट क्यों आ रहा है, ये स्क्वायर के साथ है ना रिलेटेड, स्क्वायर एक साइड से. यू कैन, चलो इसने क्यों रूट लिखा है, जस्ट ट्राई टू जस्ट क्लियर इट. एंड एट द एंड जो डेल्टा ए माइनस ए प्राइम, डेल्टा ए माइनस ए प्राइम अगर एक ही के लिए है फॉर एग्जाम्पल, तो वी कैन राइट इट, इफ वी राइट इट इन टर्म फॉर, if it's only for continuous states, so we can write it as, ये तो एक probability distribution अपना है यहाँ पर this रो, and delta I j, जो मैंने कहा if I is equal to j or I not equal to j. I is equal to j is orthogonal states, I not equal to j is orthonormal states. The first will contribute to 0, second will not. So at the end, जो closure relation का form आएगा, it will take, if we write it like this, psi r will be psi I r will be equivalent to integral of psi star r prime psi of r d3 r. और फर्दर we can, इसको हम करेंगे काम, ये psi r अपना है, ci के बदले आपने लिखा ये, ठीक है. These are basically different components, C1, C2, C3. But C1 plus C2 plus C1 psi1 plus C2 psi2 plus C3 psi2. But C1 in turn is psi star psi. That's the component of that state. The component of that state. The total components at the end they should give 1. ठीक है? Total quantity, जैसे conserved quantity होगी. ठीक है? It will give the total wave function of that state. Psi I star, psi I r, और इसको हम ऐसे लिखेंगे psi r prime d3 r. It's in, अगर पोजिशन स्पेस में है, you can also use the same thing in मोमेंटम स्पेस. मोमेंटम स्पेस में सिर्फ क्या करोगे, psi and psi की जगह phi and phi आएगा, ठीक है. देन psi and phi का आपस में रिलेशन होगा, that's it. And at the end, for any function psi of r, it's delta r minus r prime, which is the closure relation. इसी को हम कहते हैं क्या, continuous, which is a closure relation. अब इसमें लास्ट सेंटेंस इसमें लिखता है which captures it. ये कह रहा है क्योंकि if orthonormal function included in the sum is incomplete, is it will fail to represent as a delta function. It will fail to represent it as delta function. जैसे these orthogonal as well as orthonormal states continuously, इसमें discrete भी आएगा, continuous, they will form a state which will make it complete. अब ये कह रहा है कि if the for
orthonormal function included in the sum is incomplete. It doesn't contain all the states. वो है पूरा नहीं आया sum. तो हमारी जो डेल्टा फंक्शन है ना, ये वाली इंटरप्रिटेशन इट विल नॉट, वी कैन नॉट अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन. डेल्टा फंक्शन क्या क्या है? डेल्टा फंक्शन इट बिकम्स मैक्सिमम फॉर x minus x prime, and from other values it is 0. ठीक है? So this is so stop.